आमंत्रित करना चाहूंगा ladies and gentlemen, please welcome Veer Reddy, ladies and gentlemen, a man who's multifaceted, like I said, who's been running IT firm, a lawyer, and of course now an actor. And Veer, मुझे लगता है कि आप सबसे झूठ बोल रहे हैं कि आपकी पहली फिल्म है. आपको लग रहा है ऐसा कि पहली फिल्म है इनकी है? मुझे लगता है हॉलीवुड में भी कहीं ना कहीं फिल्म्स कर चुके हैं. वीर, is that true? Not at all. Sorry. No, it's my first film, debut film. It's as natural as it comes. Wow. I mean, I didn't get trained or whatever, work hard. So I just go to the shoot, whatever the time I had, I did it. Wow, amazing. Round of applause, ladies and gentlemen, for Veer Reddy. What a fantastic performance. 4 visuals we have seen. In 4 visuals, he's acted very differently. From salt-pepper look to a romantic boy to, of course, chilled out look. Ladies and gentlemen, the man who's made it possible, जिनके विजन में वीर ने पूरा बिलीव किया और समर्पित कर दिया. जोरदार तालियां रवि गोगले जी के लिए, द कैप्टन ऑफ द शिप, द डायरेक्टर रवि गोगले जी. मैं चाहूंगा कि प्लीज मंच पे आए. और वाओ, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स ऐसे हों तो सच में फिल्म जो है, it speaks volumes, man, and this is what your trailer has done. Your songs have been so amazing, Ravi ji. Commendable job. बहुत सारे सवाल हैं, मगर उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे वो इंसान जिन्होंने तेलुगु से ये फिल्म हिंदी में लाने का सोचा. सो थैंक्स टू हिम. अनिल सावले जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, एंड ऑफ कोर्स ही हैज वर्कड रियली क्लोजली, लाइक आई टोल्ड यू, विद शाहरुख खान साहब. एंड हमारा सौभाग्य है कि ऐसे 3 दिग्गज हमारे साथ मंच में मौजूद हैं. मैं चाहूंगा यहाँ पे हम सब एकत्रित हो जाएं. सो वीर, आपने 25 साल अमेरिका में स्पेंड किए, एंड देन few years back when you came to India, you started working on this film. So आखिर how did this happen? How did legally Veer happen to you? Okay, so I lost my dad, so you can see, it's a tribute to my dad, all the film. So I was stuck in India, तो उस time lockdown हो चुका था. So my flight ticket, I had a flight ticket to go back to US. So, and then things happen. Fate has its own way. So how to kill my time here during that 6 months? So I thought I'll start a podcast. Oh, Now that's so relevant. So is the film. So I started weekly with Veer, dialogue with diaspora, and I in search of some technical folks for the audio. When you have a podcast, you have to get it rendered or whatever, all the technical terms. So that's when I ran into some film folks. Then I thought, okay, because in India, one thing I observed is, आप लोग सोचते होंगे कि भाई साउथ से आता है सब mythological genre और elevated stars ये सब. लेकिन लीगली भी ऐसा एक फिल्म है, तो एक complete Indian legal thriller है. So आप जो देखा वो कुछ नहीं है. Film courtroom drama. right. It will give you the chills and required chills and thrills. And you will tell me this after watching it. Absolutely, I think while having the look at the trailer, I mean, we were totally amazed, and of course also amazed by the looks and the character that you have portrayed in 4 different visuals. That was really amazing. और इस तरह से अगर आपने लॉकडाउन में प्लान किया है, so that was amazing. So the story was basically, the title is my name, of course, Hindi audience के लिए बहुत अच्छा है. It's basically justice, right? How do you like Abhinandan was asking me why this title. तो क्या लीगली भी मतलब क्या है? मतलब लीगली जो जीत, which is nothing but justice. So you can interpret the way you want it. But I just, to be honest with you all, so if I'm making a film, why don't it be my name, right? I don't know whether I'll make a next film or not. So, and also there's almost Legally Blonde, and that's a comedy. Right. So similarly, then I thought, okay, I'll make complete thriller. So luckily it worked out well, and I'll really thank Anil Saab for flying down to Hyderabad and watching our film and believing in us, giving us the confidence. So let's see. Of course, all the people from the industry have loved the film so far. And ऐसे में Ravi ji, there's so many questions in our minds, in media's mind. But एक सवाल, आपने 300 ad films बनाए, आपने 20 से भी ज़्यादा स्क्रीन प्लेस लिखे हैं बड़ी-बड़ी फिल्मों में. You worked people like Chiranjeevi in down south. So why Legally Veer? What made you feel कि this is a script I want to work upon with Veer? Thank you to media. Actually क्या है ना सर, ऐसे रियलिटी मूवीज बहुत कम आते हैं. फिर मूवी का मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल से उनको एंटरटेन किए, मगर
जैसा उनको इंफॉर्मेटिव एंटरटेन करना ये फिल्म है, इसलिए ये फिल्म मैंने स्टोरी भी वैसे ही लिखा था जैसे मैंने वीर को स्टोरी बोलने के टाइम पे भी वैसे ही। And also, if I can add, so all of us are watching live criminal justice system. जैसे ज़्यादा बोलेगा तो यूट्यूबर्स जो भी हो. Of course. So अभिनंदन was asking me उनका कोई केस है तो मैं बता रहा हूँ. सबका एक जो Right. justice. So you can see like what you have to go through, whether you're innocent or whatever you're guilty. You have to follow the process. And process most of the times is a punishment. फिर भी करना पड़ता है. Absolutely, and the way I'm sure बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके शायद छोटा अमाउंट या फिर एक ऐसा इम्पोर्टेंट केस जो शायद आपके लिए मैटर करता है मगर शायद किसी और के लिए नहीं करता है. सो वो एक आम आदमी में जो चीज बीतती है वो इस फिल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. सो दैट मेक्स इट अ कॉमन मैन फिल्म एंड दिस इज हाउ तेलुगु फिल्म्स आर यूजुअली नोन फॉर. इवन क्या है ना सर, जब भी हम आम आदमी को एक केस का जो फाइल होता है ना, क्राइम में इन्वॉल्व होने का एक झूठी इंजाम में फंस जाता है, तो खाली वो आदमी एक ही नहीं है, उनका फैमिली भी सफर होता है Absolutely. उसके साथ. Right. हम जस्ट उनके पेपर में देखते हैं कि खाली उनका फोटो, मगर जैसे उनके बच्चे स्कूल जाते हैं तो कैसे छेड़ते हैं, अगर वो उनका बीवी कहीं उनका माँ बाप यहाँ बाहर गए तो कैसे होता है. जब भी हम देखते हैं न्यूज का मतलब दिखने वाला, जो पेपर में दिखने वाला या ना तो मीडिया में दिखने वाला, मगर उनका फैमिली का सफर कैसा है, पेन, उस पेन को हमने इस पे प्रोजेक्ट किया है. यही ये फिल्म है. Wow, I think it's beautifully shown in the trailer so far. और I think फिल्म में ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा तभी अनिल साबरे जी यहाँ पे इसको हिंदी सिनेमा तक लेके आए हैं. हैदराबाद तक आए. जी एग्जैक्टली. सो अनिल जी, अगला सवाल जैसे कि आप जानते हैं आपसे ही है मेरा कि व्हाट मेड यू ब्रिंग दिस फिल्म टू हिंदी ऑडियंसेस? इस फिल्म का कंटेंट अच्छा लगा था, दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि इसको हिंदी में एक बार कोशिश करते थे प्लीज. और जबकि बताना चाहूंगा अनिल जी के पास बहुत सारे अक्सर प्रपोजल्स आते हैं फिल्म्स को लेके ये वो, एंड देन आई थिंक अगर अनिल जी हुज वर्क विद रेड चिलीज, हुज वर्क विद शाहरुख खान साहब, वो अगर इस फिल्म को लीगली वीर को लीगली हिंदी बनाना चाहते हैं तो कुछ तो कारण होगा. सो ऐसे में वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. और ट्रेलर में हमने वो बात देखी है और डिफरेंट लुक्स में जो हमने देखा है वीर को, that says it all, because this Veer is different. These are actually 5 different Veers which I have seen so far today. One in this, another in the trailer, third in the song, and then goes on. So Veer, we want to know about the looks that you have worked upon throughout. Nothing, just a common man, आम आदमी हूँ, just demystified. This is a corporate look. This is I go back to my life. So unless you all make it super success on 7. Sure it will. Of course, we'll think about making more. But nothing, just being myself. Like you were talking outside, nothing. So I think the movie will convey the message that commoner versus celebrity justice. Everybody today is talking about, right? So some people are missing in action. They need to go to the police station to give the statement. You may be innocent, but you follow the process. Already one girl is going. Right. You know who I'm talking about. Yeah, we've got that. So that's the essence of it. So I urge people, like we are living in a democratic society. We have to follow the process, and whether you like it or hate it, you have to follow it. And that's what the message. Like Ravi said, it's not just entertaining with a thriller, but it's also educative. It will provide some education from the 360 view of a criminal justice system, how it works. And Veer and Ravi, because you're not from the acting background, as you've said, the trailer says something else, that shows probably that you've done a good amount of acting workshop training or a lot of films before. But as per Veer says, he's done the very first film, it's a debut film, and the debutant director. So how much you had to work for this character, or it was very natural? It was very natural to you, or Ravi had made some effort to probably just. For me, the most challenging part was dubbing. My Telugu was so accented, so is my Hindi, I'm told. I don't know. It took me about 3 to 4 weeks to do dubbing. So that was the difficult part. The rest Right. is, to say that like living abroad for so long, decades, and then come back to India to speak your own language is a bit of a challenge. But now I think I'm फिर देसी बन गए. ठीक है, चलता है अभी. But पहले तो जब आया तो बहुत problem. That is the most challenge.
But other things we don't understand, right? There's a camera there, and they have something in the mind edit room and all. As a newcomer, I'm not saying I did a great job and all, but I just kept telling myself, okay, I had to do this. So I tried to be, myself. Very, very nicely said, Ravi. एक्चुअली मैंने जब भी वीर सर स्क्रिप्ट पूछता है ना, स्क्रिप्ट की आपको देने की जरूरत नहीं, आप खाली लोकेशन पे आ जाओ, मैं देख लूँ। जैसे आर्टिस्ट लोकेशन पे एक वाइट पेपर जैसा आएगा ना, उस पे कुछ भी हम लिख सकते हैं। क्या बात। अगर प्रिपेयर होकर जो आएगा ना आर्टिस्ट, वो लाइंस में फंस जाता है। इसलिए मैंने बोला कि खाली व्हाइट पेपर जैसा आ जाओ, मैं जो होना है आपके लोकेशन पे लिख लूंगा। क्या बात है। ऐसे ही आर्टिस्ट को सिखा के वहां पे लोकेशन में ये देख रहे हैं ना एयरलाइन, जैसा बाहर रहता है, जैसा आप एक आदमी से बात करता है वैसे ही बात करो। मैं खाली कैमरा रहता हूँ, बस वो कैप्चर कर लूंगा, 3 cameras. उतना ही बताए। क्या बात। I think that's what you call a director's actor, and Veer has totally proved it with the trailer that we have seen, that you are director's actor, you are Ravi's actor, and one. They stopped me not to go to gym. You can see that I was like. You had to go to gym, or? No, I was doing gym. That was my lifestyle. Right. But for flexibility or other reasons, they said no. Oh, you had to Flash. stop. Yeah. Oh, right. The blue one. Different look. Okay. So रवि, आपने इनकी लुक्स पे कितना काम किया? बिकॉज बहुत अलग अलग हमने अवतार में इनको देखा। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये बेसिकली लायर था, तो मैंने सोचा कुछ होमवर्क करूंगा, कुछ तो मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ भी मत करो सर, खाली आ जाओ, जो बाहर जैसा आप बात करते हो, मुझे ज्यादा एक्टिंग की जरूरत नहीं, नेचुरली होना है। और जैसे कुछ आदमी से कैसे बात कर, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया तो कैसे डील करते हो, वैसे ही बात करो। ये आर्टिस्ट लोग, मगर आर्टिस्ट मत समझो, एक क्लाइंट समझो। क्या बात है। उतना ही, इसलिए बहुत कम दिनों में हो गया शूट, भी अच्छा सा आउटपुट आया। आज जो भी देख रहे हैं, ये मूवी आप देखोगे ना, एक खाली एक कमर्शियल नहीं दिखेगा। एक हमारा जो परिवार, बगल के परिवार का कुछ प्रॉब्लम होता हम देखते हैं ना, रेगुलर कोर्ट में जो देखते हैं ना, वैसे ही रहेगा। कुछ ड्रामा वगैरह हाई पिच, साउथ फिल्म बोलने के बाद आप कुछ सोचेंगे कि एक बुलेट 3 लोगों को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। और ज्यादा भारी डायलॉग्स नहीं रहेगा, रेगुलर डायलॉग्स है। फर्स्ट टाइम जो फुल 360 व्यू ऑफ लीगल सिस्टम, इंडियन लीगल सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बनाया। तो पूरा ये सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री विद कोर्ट रूम ड्रामा है, तो आप पूरा फैमिली परिवार के साथ देख सकते हैं। इसमें कुछ मैसेज भी है, हम सबको रूल्स और कानून को फॉलो करना पड़ता है, तो ये मैसेज है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एज अ डायरेक्टर कितना चैलेंजिंग था इस चीज़ पर रिसर्च करना, और थोड़ा सा अगर बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी के साथ। और जैसे हमने जो स्टोरी लिखने के टाइम पे स्टोरी लिख लिया, मगर हेलो जैसे फिल्म बनाने के टाइम पे इसका जो भी है स्टोरी लिखने का इजी तरीका होता है, मगर उनका रियलिटी में लाने में कुछ ना कुछ मदद तो पड़ता है। मगर बेसिकली प्रोड्यूसर जी लायर होने के नाते मुझे उतना ज़्यादा स्ट्रगल होने की ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं इजीली हो गया। जो भी डाउट होगा उनसे बैठ के बात करने का, उसका डेवलप कर लेने का, जो सेक्शंस है, जो कैसे लॉ प्रोसीड होता है, कैसे एसएचओ इन्वेस्टिगेट करता है, कैसे पुलिस उनको विटनेस कलेक्ट करते हैं, ये सब हमने इनसे पता करके उसको डेवलप करके कर दिया। सर, आपसे जानना चाहूँगा, सभी चीज़ों को सबके सामने लेके आना कितना चैलेंजिंग था, उसके बारे में कुछ बताइए। और थोड़ा सा बताइए कि लॉज के बारे में आपने क्या रिसर्च किया था, कितना चैलेंजिंग था ये। तो हम लोग फिल्म सब, अगर मैं फिल्म बैंक्रप्सी लॉ के बारे में बना दे तो बोरिंग हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, आप ही भाग जाएंगे इधर से, नहीं। तो अब सब जो भी फिल्म बनता है क्रिमिनल लॉ के बारे में बनता है ना। तो या वो हमारा मर्डर ट्रायल है जी, तो उसमें हम दिखाएंगे मिडिल क्लास लोग कैसे ये पुलिस स्टेशन जाए, नहीं तो एक कोर्ट रूम जाए स्टेटमेंट देने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो कैसे घबराते हैं वो लोग, जबकि वो लोग इनोसेंट है।
फिर भी ना सिचुएशंस ऐसे हो जाता है कि वो लोग फंस जाते हैं, तो वो सब दिखा है। रिसर्च थोड़ा सिनेमैटिक लिबर्टीज लिया हम लोग, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट्री बन जाता है। तो इधर उधर सेक्शंस, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स सब जो असलियत क्लोज टू रियलिटी दिखा है। किसका आइडिया था कि उसको हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए और क्या प्लान है कि और भी लैंग्वेजेस में मैं जैसे दिल्ली में पढ़ा हूँ 7 साल, तो ऑब्वियसली तो मेरे को तो प्लान था पहले दिन से, मैं पैन इंडिया टाइप ही स्टोरी यूनिवर्सल है जी। तो हमारा देश में तो एक ही कानून चलता है, तो इसीलिए तो हिंदी में क्या बाकी लैंग्वेज में भी बनाएंगे। सर आप बताइए कैसे जुड़े फिल्म के साथ और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फिल्म करने का? मैं जब हमारे एक मित्र है सचिन जी, वो जब मुझे इनके साथ वीर जी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया, जब मैंने इनकी पिक्चर देखी तब मुझे बहुत अच्छी लगी कंटेंट। तो हमने यही डिसाइड किया था कि इसको हिंदी में भी कोशिश कर लेते हैं। तो उस हिसाब से हमने ये प्लान किया कि इसको हिंदी में ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ करते हैं। वी हैव सीन योर डिफरेंट लुक्स, थोड़ा सा बताइए कि लुक्स के ऊपर कितना एक्सपेरिमेंट किया एज एन एक्टर आपने? कोई नहीं, बस जिम जाना बंद करा दिया है लोग 8 महीने से, बस ये है और कुछ नहीं। जो देखते दाढ़ी बस शेव कर दिया, बस कुछ नहीं। तो बस सचिन अनिल साहब मेरा दोस्त, लायर का दोस्त है, तो अच्छा हुआ, इनका बहुत धन्यवाद है, क्योंकि हैदराबाद आके देखे है फिल्म, कितना लोग आते हैं। तो हमारा फिल्म दूसरा टाइप है, साउथ से आता है ना, जब आजकल फिल्म आ रहे हैं आपका मिथोलॉजी और जो भी हीरो एलिवेशन फिल्म्स आते हैं, तो हमारा ट्रू ऑल इंडिया फिल्म है जी। बस इतना तो कह सकता हूँ। अब लेबलिंग नहीं हो सकता है कि भाई ये साउथ नॉर्थ, ये ऑल इंडिया में चलता है। ऑल्सो आपका डेब्यू फिल्म है, एक्साइटेड, नर्वस, क्या फीलिंग है? और ऑल्सो ये भी जानना चाहूँगा कि ये कौन से एक्टर से इंस्पायर होते हैं आप? तो ये फिल्म के लिए खुद को मतलब जो सिचुएशन के थ्रू करा दिया। जो मैं हमेशा फेवरेट रहा हूँ शाहरुख खान साहब का, वो साहब के उनसे 1-2 बार मिला भी, कॉलेज डेज में आए थे जब 90s में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ओके, गुड।